अपने विचारों को बदलना। Everybody say with me is change your thinking. अपने विचारों को बदलो, ये अपने आप सभी लोग कहें। One more time. फिर एक बार Everybody say with me change your thinking. सभी लोग मेरे साथ कहें कि अपने विचारों को बदलें। One more time. Everybody say with me change your thinking. सभी लोग फिर एक बार कहें कि अपने विचारों को बदलें। You know what Jesus preached? पता है यीशु ने क्या प्रचार किया? He told the people change your thinking. उन्होंने लोगों से कहा कि अपने विचार बदलो। Why? These people become very religious. क्यों? ये लोग जो है बहुत ही धार्मिक हो गए थे। Don't do this and don't do that. Don't do this and don't do that. ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। They are full of religious activity. Here onwards you are not going to be like a religious people. यहाँ से अब आगे को जो है आप धर्म के व्यक्ति नहीं रहोगे। Now the kingdom has arrived. अब जो है राज्य आ चुका है। And the kingdom of heaven. वो स्वर्ग का राज्य, The kingdom which is invisible. वो राज्य जो अदृश्य है But more real and more powerful. लेकिन बहुत ही वास्तविक और बहुत ही सामर्थ्यशाली, And that kingdom has arrived. और वो राज्य जो है आ चुका है। So Jesus said, repent, change your thinking. The kingdom of heaven has arrived. तो यीशु मसीह कह रहे थे कि मन फिराओ, और क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ चुका है। That means from now onwards you're going to live as a kingdom citizens. इसका मतलब ये होता है कि अभी से आप जो है राज्य के नागरिक जैसे रहोगे, Not as a religious people, और एक धर्म के व्यक्ति जैसे नहीं, but as a kingdom citizens. बल्कि एक राज्य के नागरिक जैसे। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, I used to be religious, मैं एक धार्मिक व्यक्ति जैसे रहा करता था, but I am not religious anymore. लेकिन अब मैं कोई धर्म का व्यक्ति नहीं हूँ। I am आगे not को a religious person. अब मैं धर्म का व्यक्ति नहीं हूँ, I am a kingdom citizen. अब मैं राज्य का नागरिक हूँ। I am a child of God. मैं परमेश्वर का संतान हूँ, I am an ambassador of Christ. मैं परमेश्वर का जो है प्रतिनिधि हूँ, I am a king in this earth. और मैं इस पृथ्वी पर जो राज्य हूँ। That is what Jesus preached. और यही यीशु ने जो है सिखाया, He came to restore the dominion back to man. और वो मनुष्य को वापस वो राज्य पुनर्स्थापित करने के लिए He आया, said, the kingdom of heaven has arrived. और उन्होंने कहा कि स्वर्ग का राज्य आ चुका है। Now change your thinking and become a kingdom citizen. अब अपना जो है सोच बदलो और जो है राज्य के निवासी हो जाओ। And Bible says, और बाइबल कहता है from that time onwards, he is going everywhere and preaching about the. And Jesus Christ came to restore the kingdom back. और यीशु मसीह आए राज्य को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए। From that time onwards, और उस समय से Jesus had only one message. यीशु के पास केवल एक ही संदेश था। Everybody said Jesus had only one message. सभी लोग कहे यीशु के पास केवल एक ही संदेश था, He went everywhere and preaching about the kingdom. और वह सभी जगह जाकर जो है राज्य का जो है प्रचार कर रहे थे। Everywhere he said, I have to go to another city to preach about the kingdom. दूसरी जगह जाना है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने। Only one message he had. केवल एक ही संदेश उनके पास था, All his parables. और सारे जो दृष्टांतों में It is about the kingdom of heaven. वो जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में। If you read Matthew chapter 13, यदि आप मत्ती 13वां अध्याय पढ़े, he said, the kingdom of heaven is like this. उन्होंने कहा कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है, The kingdom of heaven is like that. और परमेश्वर का राज्य ऐसा है। The whole parable is about the kingdom of heaven. और सारा दृष्टांत जो है स्वर्ग के राज्य के बारे में था। And he told his disciples और उन्होंने अपने चेलों से कहा, in Matthew chapter 10 verse 7, मत्ती के 10वें अध्याय के 7वें नंबर के वचन में he told his disciples, उन्होंने अपने चेलों से कहा, when you go out for ministry, जब तुम बाहर सेवकाई के लिए जाओ, don't preach anything else. कुछ और ज्यादा प्रचार मत करो। When you go out for ministry, go and preach everywhere about the kingdom. उन्होंने कहा कहीं भी तुम बाहर सेवकाई करने प्रचार करने जाओ तो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। You see what Jesus told to preach? देखो यहाँ पर यीशु ने क्या प्रचार करने के लिए कहा। He told us go and preach everywhere about the kingdom. उन्होंने कहा सभी जगह जाकर राज्य का प्रचार करो। Now think, what our pastors and preachers are preaching. अब आप सोचो जरा कि हमारे पासवान लोग किस बारे में प्रचार करते हैं। Amazing thing is about they did not understand about the kingdom. और बड़ी अद्भुत बात है कि उनको जो अभी तक राज्य के बारे में समझ ही नहीं आया। You go and ask many pastors what it means to seek first the kingdom. और उनसे जाकर पूछा बहुत से लोगों को जाकर के सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजने का अर्थ क्या है। You go and ask them. आप उनसे पूछो। They will tell when you wake up in the morning, the first thing you should pray, that is what seek first the kingdom means. वो जवाब देंगे कि जब सुबह सुबह जब पहले आप उठते हो तो सबसे पहले उनके राज्य को खोजो। इसी का अर्थ होता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो। But shall I tell you? लेकिन मैं आपसे कहूँ, a lot of people think that if they pray in the morning at 5 o'clock, they think they are seeking the kingdom. बहुत से लोग सोचते हैं कि सुबह 5 बजे उठकर यदि हम प्रार्थना करें इसका मतलब होता है कि हम सबसे पहले परमेश्वर का राज्य का खोज कर रहे But हैं। I want to tell you today, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता
चाहता When हूँ। Bible says seek first his kingdom, जब बाइबल कहती है कि सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो, the word seek means try to understand. वो शब्द खोज का अर्थ होता है समझने का प्रयास करो। The word seek means learn and study and apply the kingdom. और खोज इसका अर्थ होता है कि पढ़ो, सीखो और उनके सारे तरीकों को इस्तेमाल करो। When Bible says seek first the kingdom, जब बाइबल कहता है कि सबसे पहले उनके राज्य की खोज करो, what Jesus is telling, यीशु मसीह क्या कहना चाहते He's हैं? not telling you to pray at 5 o'clock in the वो morning. ये नहीं कह रहे कि सुबह उठ के 5 बजे तुम प्रार्थना करो। He's telling read this kingdom book वो कहता है कि ये राज्य की पुस्तक पढ़ो and understand how this kingdom operate in this world. और समझो कि कैसे जो है राज्य इस दुनिया में कार्य करता है, Understand the dynamics of his kingdom. और उनके राज्य के सारे राजशाही कार्यों को समझो। He said seek first his kingdom. उन्होंने कहा कि सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो। Who said it? किसने कहा ये? Think about this. The Is- person who said is Jesus. सोचो इसके पर, जिसने ये बात कहा वो यीशु मसीह है। He did not say seek me. उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे खोजो, You know, that is what we are doing. यही हम कर रहे हैं। But Jesus himself by his own mouth, he said, seek first his kingdom. लेकिन स्वयं यीशु मसीह ने अपने मुख से खुद कहा सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो, Because he has created a kingdom for us. क्योंकि उन्होंने हमारे लिए राज्य की रचना की He wants us to, enter into that kingdom. और वो चाहता है कि हम उस राज्य में प्रवेश करें, And not only entering into the kingdom, और केवल उसके राज्य में प्रवेश करना ही नहीं, we should learn how to operate in that kingdom. हमको ये भी सीखना है कि उसके राज्य में कैसे कार्य करना So है। Jesus told his disciples, जब यीशु ने अपने चेलों से कहा, this is very important. देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, Seek first the kingdom. सबसे पहले उसके राज्य की खोज The करो, kingdom is a country. और राज्य जो है एक देश है, You try to understand this kingdom. आप उस राज्य को समझने का प्रयास करो, Learn and study well about this kingdom. इस राज्य के बारे में अच्छा पढ़ें, अच्छा सीखें। Once you understand about this kingdom, ये एक बार यदि आप इस राज्य के बारे में समझ जाओ, you will not have any lack in your life. फिर आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। You don't need to seek money. आपको पैसों के पीछे जाने की भी जरूरत नहीं, You don't need to seek healing. ना तो आपको चंगाई के पीछे जाने की पड़ेगी, You don't need to seek peace. ना तो आपको शांति के पीछे जाने पड़ेगी। If you only understand how his kingdom operate in this world, केवल आप उनका राज्य कैसे इस संसार में कार्य करता है ये बात को समझ जाएं, all the thing which you need will follow you. और सारी चीजें जिसकी आपको आवश्यकता है वो आपके पीछे आने लगेगी। You understand? समझ में आ रहा है आपको? Hallelujah. हालेलुया, Praise God. प्रेज गॉड। Let's clap your hands and praise God. आइए हम ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। If you only understand how his kingdom operates, केवल आपको ये समझ में आ जाए कि उनका राज्य कैसे कार्य करता है, you will not have any lacks in your life. आपके जीवन में फिर कोई कमी घटी नहीं होगी। Just think about this. इसके बारे में जरा आप खाली सोचें। You're all an Indians. आप सब भारतीय हो, We're all an Indians. हम सब भारतीय हैं, As an Indian citizen, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते as we are living in this country, जैसे हम इस देश में रहते हैं, we have some rights and privileges. हमारे कुछ जो सौभाग्य इस दुनिया इस राष्ट्र में है, Our government try to take care of us as much as possible. और हमारी सरकार हमारी जितनी हो सके उतनी जो है हमें संभालने का प्रयास They करता है। try to provide education. वो हमें अच्छा शिक्षण देने का प्रयास करता They है, try to provide food for poor people. और गरीबों को वो जो है आहार देने का प्रयास करता है, They even try to take care of their health. That's why they're building in hospitals. और वो हमारी सेहत का भी ख्याल रखना चाहता है, इसीलिए वो कई सारे अस्पतालें बनाता है। So our government try to take care of us. तो हमारी सरकार हमारी परवाह करता है, God is also saying, परमेश्वर ये भी कहता है, my government मेरी सरकार will take care of you. आपको संभालेगा। If you seek my government, यदि आप मेरे सरकार के पीछे my जाओ, government will guarantee to meet all your needs. मेरी सरकार आपको गारंटी देती है कि आपकी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। So he said, don't seek anything. तो कहता है कि किसी चीज के पीछे मत जाओ, Don't worry about anything. किसी चीज की आप चिंता मत करो। If you read in Matthew chapter 6, यदि आप मत्ती 6 अध्याय पढ़ो, before it says seek first the kingdom. इससे पहले कि वो कहे कि परमेश्वर का राज्य खोजो, If you go back to a few verses back, अगर आप उसके पहले कुछ वचनों को देखें तो it says that you cannot serve two masters. वो कहता है कि आप दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, And you cannot serve God and money. आप पैसा और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर He सकते। said don't serve two masters. वो कहता है कि दो मालिकों की सेवा मत करो। Now if I tell you don't serve two masters, यदि अभी आपसे मैं कहूं कि आप दो मालिकों की सेवा मत करो, everyone will tell Pastor Vito, we are not serving two masters. आप सभी लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम दो मालिकों की सेवा नहीं करते, We are serving God. हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। But
लेकिन let me tell you, मैं आपसे कहता हूँ, after telling don't serve two master, ये कहने के बाद कि आप दो मालिकों की सेवा मत करना, and the next verse Bible begins, और अगले वचन से बाइबल कहती है, therefore I'm telling you do not worry. इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप चिंता मत करो। That means if you're worrying, you're serving two masters. I want to inform you today. इसका मतलब ये होता है कि यदि आप चिंता करते हो तो आप दो मालिकों की सेवा करते हो। ये आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। If you're worrying about how I'm going to pay my school fees for my children, यदि आप चिंता करने बैठ जाते हो कि कैसे मैं मेरे बच्चों का स्कूल फीस भरूंगा, as you're worrying, you're serving two masters. तो आप जैसे चिंता कर रहे हो तो आप दो मालिकों की सेवा कर रहे हो। Go and read your Bible. आप जाकर बाइबल पढ़कर देखो, That is what Bible says. यही बाइबल कहती है। After telling do not serve two masters, then it's saying therefore do not worry. और ये कहने के बाद कि दो मालिकों की सेवा मत करना, उसके बाद वो नीचे लिखता है कि इसलिए तुम चिंता मत करना। It says do not worry. वो कहता है कि चिंता मत करो। But what else we have to do, pastor? फिर हम क्या करें पास्टर? You know, Jesus said, seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will add it into your life. वो कहता है कि सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की तुम खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी अपने आप। Father, in the name of Jesus, I pray let my people's eyes be open today. और पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लोगों की आंख आज खुल जाए। If your eyes are open, यदि आपकी आंखें खुल जाएं, if you see the kingdom of heaven is like a country, यदि आप देखने लगो कि परमेश्वर का राज्य जो है, स्वर्ग जो है एक देश है, and this Bible is about that country, और ये बाइबल जो इस देश के बारे में, how that country operates, कैसे वो जो है देश कार्य करता है, how that country take care of their citizens, कैसे वो देश जो है अपने नागरिक का जो है ख्याल करता है, how that country take care of the health issues, और कैसे वो जो सेहत के मामले में उनका देखभाल करता है, how this country take care of their, whatever the challenges they have. और कैसे कैसी चुनौतियों से जाते हैं उसका वो कैसे ख्याल रखता है वो देश। Saying you seek first his kingdom. इसलिए वो कहता है कि सबसे पहले उनके राज्य की खोज करो। Read this Bible. आप ये बाइबल पढ़ो, This Bible is about God's kingdom. ये बाइबल जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में, And the more you read, the more your eyes will be open. और जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना आपकी आंखें खुलेगी। When you understand his kingdom, जब आप उसके राज्य को समझोगे you will stop being a religious person. तो फिर आप एक धर्म के व्यक्ति होने का रुक जाओगे। You will not be a victim. आप एक शिकार नहीं हो, You will become a powerful person. बल्कि आप एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति बन You जाओगे। will come to know that you are a king in this earth. आप जान जाओगे कि मैं इस दुनिया में एक राजा हूँ। I'm telling you today, मैं आज आपसे कहता हूँ, if you believe in Jesus यदि आप यीशु पे विश्वास करोगे and you are a God's children, और आप परमेश्वर के संतान हो, you are a born again. आपका नया जन्म हुआ है, As a born again child of God, और परमेश्वर के नए जन्म में संतान होने you के are नाते not an ordinary person. आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, You are a powerful king. आप एक सामर्थ्यशाली राजा हो। Everybody say with me, I'm a powerful king. सभी लोग मेरे साथ कहें कि मैं एक सामर्थ्यशाली राजा हूँ। Hallelujah. हालेलुया, I'm a powerful king. मैं एक सामर्थ्यशाली राजा हूँ, I have a dominion. मेरे पास अधिकार है। So I want to tell you this. तो मैं आज आपसे कहना When चाहता you हूँ, talk, you should talk like a king. जब आप बातें करते हैं तो एक राजा के जैसे बात करो। You should walk like a king. आप एक राजा के जैसे चलना है, You should dress like a king. आप एक राजा के जैसे वस्त्र पहनना है। Pastor, we don't have any money, pastor. पास्टर, हमारे पास उतना पैसा नहीं है पास्टर। I want to tell you today. मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, You know, you may not have any money in your pocket. हो सकता है कि आपकी जेब में कोई पैसा ना हो, You may be staying in a hut. हो सकता है कि आप झोपड़े में रहते हो, But if you change your thinking, लेकिन आज आप यदि अपनी सोच बदलते हो, no matter what, I am not an ordinary person. कोई बात नहीं, मैं फिर भी जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, I'm a king. मैं एक राजा हूँ। If you believe and develop that conscious that I'm a king, यदि आप विश्वास करो और ये मानसिकता पैदा करो कि मैं एक राजा हूँ, your financial status will increase. आपकी आर्थिक दर्जा जो है बढ़ जाएगी। You understand? समझ में आ रहा You may है? be living in a hut, हो सकता है कि आप एक झोपड़े में रहते but you हो, must believe that I'm a king. लेकिन आपको विश्वास करना है कि मैं एक राजा हूँ, I'm a child of God. मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, I'm a chosen generation. और मैं एक चुना हुआ वंश हूँ, I'm a royal priesthood. और मैं एक राजपदाधारी याजक हूँ। Hallelujah. हालेलुया, You are not a dust and a worm. आप कोई धूल मिट्टी या कीड़ा नहीं हो, You are a royal priesthood. आप एक राजपदाधारी याजक हो। You know, sometimes people become too religious देखो कभी कभी लोग बहुत ही जो है धर्म के व्यक्ति हो जाते and हैं, they miss what Bible says. और बाइबल क्या कहती है उसमें वो जो है चूक जाते हैं। Bible says you are an ambassador of Christ. और बाइबल कहती है कि आप मसीह के राजदूत हो, Ambassadors are most powerful people. और राजदूत वो होते हैं जो बहुत ही सामर्थ्यशाली व्यक्ति होते हैं। You understand? समझ में आ रहा है? In a way, एक तरीके से ambassadors are more powerful than a prime minister and president. राजदूत जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से भी ज्यादा सामर्थ्यशाली होते हैं। How, pastor? कैसे पास्टर? I'll tell you this. मैं आपसे कहता हूँ, Prime minister or president, they are representing people. देखो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, वो लोगों को जो है प्रतिनिधि करते हैं। That means you put vote. इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वोट डालें। They are, as a leader on behalf of you. इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी ओर से एक अगुवा है, लीडर है। So
So the prime minister is representing people. तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लोगों को प्रतिनिधि करता है। If you touch the prime minister, यदि आप प्राइम मिनिस्टर को छूते हो, it is like touching you. इसका मतलब ये होता है कि वो आपको छूते हैं। But ambassador is different. लेकिन राजदूत कुछ अलग होते हैं। He is not representing people. वह लोगों का जो है प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, He is representing a country. वो एक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। If you touch an ambassador of an India, अगर आप एक भारत देश के राजदूत को छूते हो, you are touching a nation. तो आप एक राष्ट्र को छूते हो, Military will come. मिलिट्री आ जाएगी। That's why easily no ambassador will die. इसीलिए इतनी आसानी से कोई राजदूत नहीं मरता। If any ambassador die because somebody killed, it is a shame on that country. अगर कोई राजदूत को किसी ने मार डाला तो वो जो इस देश के लिए जो है बड़ी शर्मनाक बात होती है। You understand? समझ में आ रहा है? Ambassador will not easily travel with any president and prime minister. और राजदूत किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ इतना आसानी से सफर नहीं करता है, Because if you touch then ambassador, you are touching a nation. क्योंकि यदि आप एक राजदूत को छूते हो तो आप एक देश को छूते हो। Now who are you? तो आप कौन हो? You are all an ambassador आज forever. सभी लोग जो है स्वर्ग के राजदूत हो। You understand? समझ में आ रहा है? Hallelujah. हालेलुया। You know, see what Bible talks about you. देखो बाइबल आपके बारे में क्या कहता है। You are an ambassador of heaven. आप जो है स्वर्ग के राजदूत हो, We are all an ambassador of Christ. आप मसीह के राजदूत हो, We are all kings. हम सब राजा हैं। I want to tell you this. मैं आपसे ये कहना चाहता I हूँ, understand your problem. मैं आपकी समस्याओं को समझता हूँ। 7 years before, 7 साल पहले I used to live in a hut. मैं भी झोपड़े में रहता था। You understand? समझ में आ रहा है? No fan, कोई पंखा नहीं, nothing was there. कुछ भी नहीं The था, house is fully made up of what you call that patra. और वो पूरा घर जो है पत्रे से बना हुआ था, Some place wood and some place that patra. और कहीं पर लकड़ी, कहीं पर वो पतरा, No electricity. कोई बिजली नहीं, You understand? I used to stay there. कुछ भी नहीं था। पता है मैं वहां रहता था, No money. कुछ पैसा नहीं। You understand? समझ में When आ I रहा है? came here to Mumbai, I did not join any organization. और जब मैं इस मुंबई में आया तो मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ा। Lot of people told, बहुत से लोगों ने कहा join this organization, join that organization. इस संस्था में जुड़ जाओ, उस संस्था में जुड़ I जाओ। asked them why I have to join. मैंने पूछा उनसे मुझे क्यों जुड़ना They है, told you will get 5,000 support. तो उन्होंने कहा तुम्हें महीना जो है 5,000 का मदद मिल While जाएगा। I'm living in a hut, जब मैं झोपड़े में ही था, I know that I'm a king. 5,000 is nothing for me. मैं जान गया था मैं राजा हूँ, 5,000 मेरे लिए क्या बस होगा। You understand? समझ में आ रहा है? 5,000 is nothing. 5,000 कुछ भी नहीं है। You know, today some people, if they don't get a monthly support of 5,000, some people cannot do ministry. देखो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, अगर उनको महीना 5,000 सहायता नहीं मिले तो सेवकाई नहीं कर पाते। I did not join anyone for 5,000 and 10,000. मैंने किसी को नहीं जोड़ा 5 या 10,000 के लिए। You know what I told some people? पता है मैंने कुछ लोगों से क्या कहा? You show me a spiritual father. मुझे एक आत्मिक पिता दिखाओ, I don't want money. I'll give money. मुझे पैसों की जरूरत है, मैं पैसे दूंगा। 7 years before, 7 साल पहले staying in a hut, झोपड़े में रहते हुए believe that I'm a king. ये विश्वास करता था कि मैं राजा हूँ। Today, आज in the span of 7 years, और इस 7 साल के दरमियान from hut, recently I moved to a bungalow. और झोपड़े से मैं अब बंगलों में रहता हूँ। You understand? समझ में आ रहा है? It is God who done all those things. ये परमेश्वर है जिसने सब कुछ किया। It has taken 7 years for me. इसके लिए मुझे 7 साल लगे, But God was keep on promoting me. लेकिन परमेश्वर मुझे जो तरक्की पे तरक्की देता गया, I always talk big, big things. और मैं हमेशा बड़ा बड़ा सोचता हूँ। Some people laughed at me. कुछ लोग तो मुझ पर हंसे, Don't have bus fare, he is talking big, big things. बस का किराया भी नहीं और बातें देखो तो इतनी बड़ी बड़ी। One person asked me, एक व्यक्ति ने मुझसे do पूछा you have a money? क्या तुम्हारे पास पैसे How हैं? much money you have in your bank account? तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? I said, I don't have any money. मैंने कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं। Then why are you talking all these things? तो फिर क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो? Having lot of money in the bank and talking, any donkey can do all those things. बैंक में बहुत सारे पैसे रखकर तो कोई गधा भी जो है ये सारी बातें कर सकता है। I don't have lot of bank balance. I have lot of faith in my heart. मेरे पास बहुत सा बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारा विश्वास है। From no money, we seen many lakhs. और कुछ भी पैसा नहीं था, फिर हमने बहुत से लाखों में रुपए देखे। I don't know how money came to us. और मुझे नहीं पता पैसे कहाँ से कैसे आए, But money began to roll in many lakhs. लेकिन पैसे लाखों में रोल होने लगे। Today our needs are very big. आज हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, I know no organization can meet my need. और मुझे पता है कोई संस्था मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर I'm सकता। planning to buy a place which is going to cost us in many crores. और मैं ऐसी जगह खरीदने का प्रयास कर रहा हूँ जो बहुत करोड़ों में जाएगा। I am not afraid of crores. मैं करोड़ों से नहीं डरता, We are planning to buy for 19 crores and 18 crores. और हम 18 करोड़ 19 करोड़ का खरीदना चाहते हैं, And on just buying a place. और वो भी खाली जगह। Then after that we have to build it. और उसके बाद फिर हमें उसे बनाना है, And that building only will be a beginning. और वो बिल्डिंग तो केवल एक शुरुआत है। After that we'll keep on being, buying a big place and keep on building it. उसके बाद तो और भी बहुत सारी जगह लेना और बनाते जाना है। And no
No wonder if I buy a stadium one day I'll run my Sunday service. और इसमें कोई जो है आश्चर्य करने की बात नहीं होगी कि हम स्टेडियम खरीदेंगे और वहां पर जो है संडे की आराधना रखेंगे। I believe with my whole heart. मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूँ। Sunday also will be there traffic jam. और संडे के दिन वहां पर जो है ट्रैफिक जैम होगा, Because people will be thronging to churches. क्योंकि लोग जो है चर्च में आने के लिए भीड़ की भीड़ लगा देंगे। You know, if you only believe who you are, यदि आप ये विश्वास करें कि आप कौन हैं, and you know, your life will change. आपका जीवन बदल जाएगा। Today you may not have anything. हो सकता है कि आज आपके पास कुछ नहीं है। Don't keep on going and telling everyone, I'm a poor pastor. जाकर ये मत बोलते बैठो कि मैं गरीब हूँ पास्टर। People looking for sympathy. लोग जो है दया तरस पाने का प्रयास करते हैं। Some people they think if I tell, then only some people will give me money. कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ही कुछ लोग मुझे पैसे देंगे। Yes, they will give. हाँ वो देंगे। How much they will give? कितना वो देंगे? Keep 50 rupees, keep 100 rupees. हाँ 50 रुपए रखो, 100 रुपए रखो। If you believe that you are a king, यदि आप विश्वास करेंगे कि मैं राजा हूँ gifts will come to you. और बहुत से उपहार आने लगेंगे। Somebody will come and give you car. कुछ लोग आके आपको कार देंगे, Somebody will come and give you a house. कुछ लोग आके आपको घर देंगे। You know, we have a testimony in this place. और इस जगह में हमारे पास कुछ गवाही है। You know, some people receive the house miraculously. और कुछ लोगों को घर जो है अद्भुत चमत्कार के रूप में मिला। I'm telling things can happen to you. मैं कहता हूँ वो बातें आपके साथ भी होंगी If you believe that you are a king. यदि आप विश्वास करें कि आप राजा हो। Sometimes people have very light opinion about themselves. कभी कभी लोगों का अपने बारे में बहुत ही हल्का विचार होता है। They'll tell, you know, I'm a dust pastor. वो कहते हैं कि मैं तो धूल हूँ पास्टर। While they pray, they'll tell, I'm a dust, God, I'm a dust. जब वो प्रार्थना करने बैठते हैं तो प्रभु से कहते हैं मैं धूल हूँ प्रभु, मैं धूल हूँ। If you ask them, what are you doing? हाँ वो पूछे क्या आप कर रहे हो, They'll tell, I'm humbling myself before तो God. कहते हैं मैं ऐसा कहने से प्रभु के सामने अपने आप को विनम्र कर रहा हूँ, नम्र कर रहा हूँ। Compared to God, I'm nothing. वो कहते हैं परमेश्वर के मुकाबले मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। First of all, who told you to compare yourself with God? सबसे पहली बात तो किसने आपसे कहा कि आपको परमेश्वर का मुकाबला करने के लिए? You understand? समझ में आ रहा है? In the book of Isaiah, यशायाह की पुस्तक में none can compare with me, Bible says. बाइबल कहता है मेरे से कोई भी जो है मुकाबला नहीं कर सकता है। Why you do unnecessary things? क्यों आप ये अनावश्यक कार्य कर रहे हो? Why you have to tell, compared to God, I'm a dust? क्यों आपको ये कहना है कि परमेश्वर के मुकाबले में मैं तो केवल एक धूल हूँ? Don't compare. मुकाबला मत करें, Just accept you are God's children. बस ये स्वीकार करें कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। Ever your children came and told you, Daddy, compared to you, I'm nothing? कभी आपके बच्चों ने आपसे आकर कहा कि प्रभु पिताजी आपके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूँ? Did your children say like that? क्या आपके बच्चों ने ऐसे कहा I'm nothing, Daddy. मैं कुछ भी नहीं हूँ I'm पिताजी, nobody. मैं कुछ भी नहीं You हूँ, are very big compared to you, I'm nothing. और आप बहुत बड़े हैं आपके मुकाबले में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। Our children never do that. हमारे बच्चे कभी ऐसा नहीं करते। If they do that, you know, we look them at a strange way. What happened to them? अगर हमारे बच्चे हमारे पास आकर ऐसा कर रहे हैं तो हम बड़े इससे देखेंगे ऐसे क्यों कर रहे हैं। But we are keep on going and telling every time to God, God, I'm dust, I'm dust. लेकिन हम परमेश्वर के पास हमेशा जाके यही कहते रहते हैं मैं धूल हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मैं धूल हूँ, मैं मिट्टी हूँ। One person said, एक व्यक्ति ने कहा, even the dust is the best, I'm the worst than a dust. एक व्यक्ति ने कहा यहाँ तक कि धूल तो भी अच्छा है, मैं धूल से भी बेकार हूँ, व्यर्थ हूँ। You know, God is having all the dust. क्या परमेश्वर के पास सारा धूल मिट्टी है? God is having the people who are crowned with glory and honor. परमेश्वर के पास ऐसे लोग हैं जिनके सर पर जो है आदर और महिमा का ताज रखा है। He is having